नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था, द टुन टुन टाउन म्यूजिशियन। रीड नाउ। Once there was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for the farmer for many years. Now, when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from her." Poor old donkey was very sad. He left the farmer and went toward the city. He walked along and he said, "I am very old, you say. No, one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know." As he walked along, an idea came to his head. "I know what I can do. I can go to Tun Tun town and become a musician." So he walked along a little later. He saw an old dog asleep on the side of the road. "What's wrong, my friend?" asked the donkey. "My master has thrown me out, as I am old and slightly deaf," said the dog sadly, and he sang. "I am very old, you say? No, 1 year at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know." "I am very old, you say? No, one cares at all for me. I have no home or house to go. What will do? I do not know." As he walked along, an idea came to his bed head. "I know what I can do. I can go to Tun Tun town and become a musician." So he walked along a little later. He saw an old dog asleep on the side of the road. "What's wrong, my friend?" asked the donkey. "My master has thrown me out, as I am old and slightly deaf," said the dog sadly, and he said, "I am very old, you say? No, one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I don't I do? I do not know." "Why don't you come with me?" said the donkey. The dog liked the idea of going to Tonton town and becoming musician. Now the walked together. And next time, on the way, the saw old tabby cat. She was thin and had strips on her. "Her for what are you doing her?" asked the donkey. And the old dog, "I am too old
to chase mice, and my master has thrown me out of the house, said the tabby cat. Sadly and said the tabby cat. Sadly and she said, I am very old, you say. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. Why don't you come with you to Tun Tun Town to become a musician? Said the donkey. Thank you, said the cat and joined him. So they walked along together a little later. They saw an old rooster on the road. What are you doing here? Along, my friend. Why are you not at your farm? Asked the donkey. My master has thrown me out as I oversleep and cannot get up in the morning, said the rooster, and he said, I am very old, you say. No one cares at all for me. Have no home or house to go. What will I do? I do not know. Come and sing with you. We are going to Tun Tun Town to become musicians, said the donkey. I would love to, said the rooster, and so off the went all together. Sun, it became dark. They entered a forest and suddenly saw a home there. Went near and peeped inside. The saw four robbers sitting by the fire and eating nice hot food. Little think of a plan, said the donkey. So together the thought of a plan. Then they got into position and the donkey counted one, two, three now. They all sang as loud as they pulled the donkey. Right, the dog barked, the cat meowed, and the roasted crowed. Then they rushed into the house. Crush, boom! One robber saved the cat's eyes and yelled, run! There are two balls of fire. The dog bit a robber and he yelled, run, there is someone with a knife. The donkey kicked a robber and he yelled, run. Thief is a ghost who has thrown me over. The rooster crowed, cook a doodly doo, and the fourth robber said, run, someone is saying, I will show you what want to do. And so saying, all four robbers run shooting out of the house, want to slip by their fire. Purit the cat want to sleep under the table. Said the dog, want to sleep the barn. Said the donkey, want to sleep on the roof.
said the roaster, and so they remained in this house and of- often sung together. They went later to Tuntun town and even give concerts. अब इस स्टोरी में क्या थी कि जो डोंकी था वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, तो जो उसके मालिक थे उसने क्या करे थे, उसका इस्तेमाल करके उसे घर से बाहर निकाल दिए थे। यानी जब उस डोंकी की ज़रूरत पूरी हो गई थी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर जब वो घोड़े को बाहर निकाल दिया तो उसने सिटी जाने की सोची। अब जब वो सिटी गया तो उसके पास ना रहने के लिए घर था, ना जाने के लिए कोई जगह थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं म्यूजिशियन टुनटुन टाउन म्यूजिशियन वहाँ पर जाऊँ, शायद वहाँ पर मेरी कोई ज़रूरत हो। तो वो क्या करता है, म्यूजिशियन के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे एक सड़क पे डॉग मिलता है जो काफ़ी बूढ़ा होता है। तो जब वो उससे जाकर पूछता है कि तुम इस तरह से क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है, यानी वो उससे पूछता है डॉग की। तब डॉग उसे बताता है कि जो मेरे मालिक थे उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तभी वो डोंकी उसे अपने म्यूजिशियन का प्लान बताता है और डॉग भी उसके साथ हो लेता है। तब दोनों मिलकर आगे जाते हैं किस चीज़ के लिए, टुनटुन टाउन म्यूजिशियन के लिए। तभी वो लोग आगे जाते हैं, तब उन्हें कैट मिलती है यानी बिल्ली। वो लोग फिर उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो भी यही कहती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह से काव और भी जो एनिमल्स है उन लोगों से उन लोग डोंकी और डॉग और कैट की मुलाकात होती है और वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को अपना प्लान बता के और अपने साथ टुनटुन टाउन के लिए शामिल कर लेते हैं। फिर उन लोग जाते हैं, तभी अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और उन लोग एक जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ पर इन लोग को एक रहने के लिए हाउस दिखता है, यानी घर टाइप झोपड़ी जैसा दिखता है। तभी उन लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं यानी डाकू टाइप 4 लोग होते हैं। तो वो लोग उनको भगाने की लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। और फिर बिल्ली जब एंटर होती है तो जो फर्स्ट डाकू होता है वो देखकर उसे ऐसा लगता है कि आग का 2 गोला है। बिल्ली की आँख देख के वो डर जाता है और जब घोड़ा दूसरे डाकू को लात मारता है तो वो कहता है कि यहाँ पर तो भूत है। तो यानी वो जो एनिमल्स जो थे वो लोग उन लोगों को डरा के वहाँ से भगा देते हैं और जो एनिमल्स लोग हैं वो लोग वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रह के अपनी आवाज़ के साथ टुनटुन टाउन म्यूजिशियन की तैयारी करते हैं। देखिए, जो जो लोग म्यूजिशियन टाउन के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले वो कौन रहता है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है, डोंकी रहता है। क्यों? क्योंकि इसके मालिक इसके घर से निकाल देते हैं तो इसके पास ना रहने के लिए कोई जगह रहती है और ना कहीं जाने के लिए कोई जगह रहती है। तो वो क्या करता है, कुछ दूर जाता है, तभी उसे डॉग मिलता है। वो डॉग को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। फिर जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें कैट मिलती है, तो इन लोग अपने प्लान में इस कैट को भी शामिल कर लेते हैं। फिर ये कुक मिलता है, इन लोग इसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। यानी इसी तरह से करते करते इन लोग करीब 5-6 लोग हो जाते हैं और ये लोग सिटी यानी टुनटुन टाउन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते इन लोग को अंधेरा हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, एक जंगल में वहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ डाकुए मौजूद होते हैं तो लोग उन लोग को भगाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और अंधेरे में उन लोगों को इस तरह से डराते हैं कि वो लोग डर के मारे उस झोपड़ी को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जब वो लोग भाग जाते हैं तो वहाँ पर इन लोगों के रहने का ठिकाना हो जाता है, यानी इन लोगों की रहने की जगह हो जाती है। और फिर ये लोग उस झोपड़ी में रुक के अपने लिए जगह बना लेते हैं कि यहाँ पर मैं सोऊंगा, यहाँ पे मैं रुकूंगा, मैं छत पे रहूँगा, मैं बेंच के यानी जो बेंचेस वहाँ पर होती है मैं उसके नीचे सोऊंगा। यानी लोग इस तरह से अपने लिए सोने के लिए जगह बना लेते हैं। और फिर जगह बनाने के बाद इन लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर रह के अपनी आवाज़ के साथ म्यूजिशियन टाउन की तैयारी करते हैं और ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या था, द टुनटुन टाउन म्यूजिशियन।
यानी जो एनिमल्स लोग हैं, जब वो लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो लोग क्या इंसानों के लिए यानी उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तब वो लोग टुन टुन टाउन म्यूजिशियन का प्लान बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, म्यूजिशियन टुन टुन टाउन।